Hello dear students, starting from where we have left in the last class. In the last class we have done acid and now we'll be doing bases. So first of all, taking up the definition that what are bases. So you should understand that base is either a metallic oxide मतलब metal का oxide या metallic hydroxide or ammonium hydroxide. So these three things are there: metallic oxide, for example copper oxide, okay, sodium oxide. So these are some metallic oxides, and metallic hydroxides, for example magnesium hydroxide, or you can take sodium hydroxide. So these are some metallic oxides and metallic hydroxides, and ammonium hydroxides, that is NH4OH. So they are bases. Either they are metallic oxides or metallic hydroxide or ammonium hydroxide. But what is the condition for being base? They have to provide, whenever they are they react with acid, they have to give salt and water only. Now this only is compulsory when you are writing this, because there are some metallic oxides or metallic hydroxides which give salt and water, but something else also is given out. Other than salt and water, some third thing also is given out. So they are not bases. So this only word is very important. What is a base? It is a metallic oxide or metallic hydroxide or ammonium hydroxide which react with hydronium ion of an acid to form salt and water only. You know that acids provide hydronium ions, and those hydronium ions, when this hydronium ion of acid will react to give water, salt and water only. So let's see the example. Copper oxide, it is a metallic oxide. Let's do the reaction with acid. Copper oxide with acid will give you water. So water is given out, and then it will give you a salt, that is CuCl2. Magnesium, nothing else is given, only salt and water is given. Magnesium hydroxide will give you magnesium sulfate, depending upon the acid we have taken. Chlorides and sulfates will be formed depending upon the acid. And then water. So water is essential, and water and salt are the only two products, then only it is the base. What is basic oxide? A basic oxide is a metallic oxide which contains the ion O2 negative and reacts with an acid to form salt and water only. तो बेसिक ऑक्साइड कौन से हो गए? वो ऑक्साइड्स जो O2 दे देते हैं, तो हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्ट करके वो सॉल्ट एंड वाटर देते हैं. दोज आर नोन एज बेसिक ऑक्साइड. बेसिक ऑक्साइड इज एक्चुअली मेटालिक ऑक्साइड. तो मेटालिक ऑक्साइड का दूसरा नाम है बेसिक ऑक्साइड. लेड 4 ऑक्साइड, जहाँ पे लेड की वैलेंसी 4 है, वेरिएबल वैलेंसी है लेड की. तो लेड की जहाँ पे वैलेंसी 4 है, उस ऑक्साइड के साथ जब वो ऑक्साइड बनाता है और इसका हम रिएक्शन कराते हैं एसिड के साथ, तो यू विल सी दैट ओके सॉल्ट इज फॉर्म्ड, गुड, ओके वाटर इज फॉर्म्ड, बट यू विल सी क्लोरीन ऑल्सो इज फॉर्म्ड. सो दैट मीन्स this is not a base. Why? Because it is giving out chlorine also. But what does the definition says? That it should be salt and water only. Salt and water only will give you base. If it is something else, then it is not a base. Thus lead 4 oxide is not a base. Let's see one more example. I will give you one more example. Manganese oxide ले लेते हैं हम. Manganese oxide also, when we react this with acid, that is HCl, so what will be formed? It will be salt, ठीक है भाई, water, okay, but again chlorine also will be formed. So although this being oxide, metallic oxide, but it is not a base because it is giving salt, water and something else, that is chlorine also. That is why it is also not a base. तो इसीलिए वो जो word
ओनली है, इट शुड नॉट बी ओमिटेड, बिकॉज अगर वो उसको ओमिट कर दिया हमने तो वो जनरल हो जाएगा, फिर सारे ही ऑक्साइड्स के लिए वो हो जाएगा, जबकि ऐसा है नहीं। सिर्फ वो ऑक्साइड्स या वो हाइड्रोक्साइड्स जो सॉल्ट एंड वाटर ओनली देते हैं, देन ओनली दे आर बेस। व्हाट इज बेसिक हाइड्रोक्साइड? वही मेटालिक हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो इज नोन एज बेसिक हाइड्रोक्साइड, तो विच कंटेन्स OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन। तो हाइड्रोक्साइड आयन किसके साथ रिएक्ट करेगा? एसिड के साथ। एसिड के हाइड्रोनियम आयन के साथ करके क्या बनाएगा? वाटर बना देगा वो। तो इस तरीके से हमारा वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है अगर OH नेगेटिव और H प्लस पॉजिटिव या हाइड्रोनियम आयन आ जाता है एसिड में से। एग्जाम्पल देख लेंगे बेसिक हाइड्रोक्साइड के, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों आपके मेटालिक हाइड्रोक्साइड्स हैं। और भी है मेटालिक हाइड्रोक्साइड, लेकिन ये सिर्फ एग्जाम्पल यहाँ पे 2 दिए हुए हैं, तो आपको याद करना है ये। अब इनका रिएक्शन अगर हम करेंगे एसिड के साथ तो हमें सॉल्ट और वाटर ओनली मिलेगा। देन व्हाट इज़ एल्कली? एल्कली वो बेसिक हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, वो बेस नहीं, वो बेसिक हाइड्रोक्साइड है, जो कि when they are dissolved in water they will give hydroxide ions as the only negatively charged ions। कोई और नेगेटिवली चार्ज आयंस नहीं आएगा इसमें, ना क्लोरीन आएगा, ना कोई और आएगा, ना सल्फेट आएगा, कोई भी नेगेटिव आयन नहीं आएगा। सिर्फ कौन सा नेगेटिव आयन देगा? वो हाइड्रोक्साइड आयन देगा। अगर वो हाइड्रोक्साइड दे रहा है वाटर में ऐड होके, तो इसका मतलब वो क्या है? वो आपका एल्कली है, तो इट शुड बी बेसिक हाइड्रोक्साइड। तो इसको हम डेफिनेशन को किस तरह से कह सकते हैं कि एल्कली क्या है? एल्कली इज़ अ बेस सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन कौन सा बेस? हाइड्रोक्साइड बेस। एंड एल्कलीज फॉर्म हाइड्रोक्सिल आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन एज द ओनली नेगेटिव आयंस, ठीक है, क्योंकि अगर हम हाइड्रोक्साइड नहीं लेंगे, ऑक्साइड लेंगे, तो वो हमारे को कौन सा नेगेटिव आयन देता है? वो हमारे को O2 नेगेटिव देता है। लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं? हाइड्रोक्सिल आयन की, तो वो हमें कौन देगा? वो हमें हाइड्रोक्साइड ही देगा। दैट इज़ वाई जो एल्कली है वो हमारा क्या है? वो हमारा हाइड्रोक्सिल आयन देने वाला बेस है जब हम उसको वाटर में डालें एज द ओनली नेगेटिव आयन। और इनका जो कलर चेंज होता है वो क्या होता है? रेड टू ब्लू। हमेशा याद रखेंगे कि जो लिटमस का इफ़ेक्ट है वो सिर्फ सॉल्युबल बेसिस में ही देखने को मिलता है। तो दे टर्न रेड, लिटमस ब्लू। ऑल मेटालिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर insoluble in water except of those of sodium, potassium and calcium। सबसे ज़्यादा soluble है जो किसके? सोडियम और पोटेशियम के। देखते हैं सोडियम का हाइड्रोक्साइड और सोडियम का ऑक्साइड, तो ये दोनों soluble हो गए, सोडियम के दोनों चीज़ें, दैट इज सोडियम ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम का भी soluble हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड, तो ये दोनों भी सॉल्युबल हैं। और कौन सा है? कैल्शियम, तो कैल्शियम का भी ऑक्साइड और कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। तो ये दोनों आपके क्या हो गए? ये आपके सारे सॉल्युबल हो गए बेसिस। दीज आर सॉल्युबल बेसिस। तो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, कैल्शियम का थोड़ा स्लाइटली होगा, बाकी ये दोनों हाईली सॉल्युबल होंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं दोनों। तो 10 द मोस्ट कॉमन सॉल्युबल बेसिस आर, ये आपके आ गए डेफिनेशन आपकी। देखेंगे इसमें सबसे पहले आपका आ गया आपका कॉस्टिक सोडा, दैट इज NaOH, कॉस्टिक पोटैश KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे आपके बेसिस हैं जो सॉल्युबल हैं, और OH दे रहे हैं तो एल्कलीज भी हैं, है ना। तो सॉल्युबल बेसिस एल्कली ये रहे आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड NH4OH। और इनका जो स्ट्रेंथ है वो इस तरीके से जा रहा है नीचे की तरफ। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किस में है? सोडियम हाइड्रोक्साइड में। उसके बाद सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है एंड फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। तो द फर्स्ट टू आर स्ट्रॉन्ग एल्कलीज बिकॉज दे completely dissociate in their aqueous solution। अपने aqueous solution में completely dissociate हो जाएंगे। ये मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। और लास्ट वाले वीक एल्कलीज हैं, लास्ट वाले 2, बिकॉज दे वीकली डिसोशिएट और आयनाइज इन देयर एक्वस सोल्यूशन। मतलब कि सारे के सारा हर मॉलिक्यूल आयनाइज नहीं होगा, कुछ मॉलिक्यूल्स उसी फॉर्म में रह जाएंगे।
ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। ये बिल्कुल ट्रू सेंटेंस है। जितने भी एल्कली हैं वो सब बेसिस हैं, क्योंकि वो क्या हैं, वो बेस हैं बिकॉज दे आर गिविंग सॉल्ट एंड वाटर ओनली। लेकिन सारे बेस एल्कली नहीं है क्योंकि सारे बेस सॉल्युबल नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड cupric hydroxide are bases but not alkalis because they are insoluble in water. This concept you have to understand. Classification of bases on the basis of their strength. कैसे आप बोलेंगे कि कोई strong है कोई weak है, that we will see. So what is a strong alkali? Strong alkali, it undergoes complete dissociation. ये हम अपने एसिड वाले चैप्टर में पढ़ के, एसिड वाले पार्ट में पढ़ के आए हैं कि what is complete dissociation. That means जितने भी molecules हैं they all will ionize to give hydroxide ion in their aqueous solution. So the concentration of OH ion will be high in strong alkali. Let's see the example of strong alkali, sodium hydroxide and potassium hydroxide. They are strong alkalis. So depending upon their strength they are known as strong alkali. Okay, so you can see here one molecule of sodium hydroxide will completely dissociate to give sodium ion and hydroxide ion, hydroxyl ion. Same with KOH, it also gives hydroxide ion and potassium. So almost 100% dissociation happens. What is a weak alkali? It undergoes only partial dissociation or ionization in aqueous solution to produce low concentration of OH ions. OH ions बनेंगे लेकिन उसका concentration will be low क्योंकि कुछ molecules रह जाएंगे और कुछ ions में convert हो जाएंगे. Example is ammonium hydroxide and calcium hydroxide. So some will be converted in NH4 plus and OH negative and some will remain as this in the solution. So this way weak alkali and strong alkali. On the basis of their acidity, तो अभी हमने वहाँ पे पढ़ा था बेसिसिटी ऑफ एसिड, यहाँ हम पढ़ेंगे एसिडिटी ऑफ अ बेस. सो व्हाट इज एसिडिटी ऑफ अ बेस? द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन विच कैन बी प्रोड्यूस्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ द बेस इन एक्वस सोल्यूशन. कितने हाइड्रोक्सिल आयन वो प्रोड्यूस कर रहा है? एक मॉलिक्यूल. वो उसकी क्या हो जाएगी? एसिडिटी हो जाएगी किसकी? बेस की. और द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन्स ऑफ एन एसिड with which a molecule of that base will react to produce salt and water only is known as acidity of the base. या एक तो आपने बोल दिया OH हाइड्रोक्सिल आयन, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन या नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन्स. भाई एसिड मिलेगा, बेस मिलेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा. सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, कितने हाइड्रोजन्स के साथ वो OH आयन्स रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? वाटर बना रहे हैं और सॉल्ट बना रहे हैं. Only salt and water. The number of hydrogen ion of an acid, that is also the acidity of a base. जितने भी हाइड्रोजन आयन हैं एसिड के, उसके साथ वो जो बेस है वो रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है, वो उसकी एसिडिटी ऑफ द बेस है. चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं कितनी तरीके की एसिडिटी है हमारी. पहले तो है मोनो एसिडिक बेस. मोनो मतलब समझ में आ रहा है, वन. So if it is a base that dissociates in molten or fused state or in aqueous solution to produce one hydroxyl ion, जहाँ पे one hydroxyl ion per molecule आएगा वो आपका मोनो एसिडिक बेस हो जाएगा. तो आप देखेंगे दोनों स्ट्रॉन्ग हमारे जो एल्कली हैं NaOH एंड KOH वो मोनो एसिडिक बेस हैं एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड. डाई एसिडिक बेस क्या होगा? डाई एसिडिक बेस होगा वो बेस जो मोल्टन या फ्यूज स्टेट में डिसोशिएट करके 2 हाइड्रोक्सिल आयन्स पर मॉलिक्यूल्स देगा. फॉर एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. सो हियर यू कैन सी 2 हाइड्रोक्सिल आयन्स आर गिवन. तो ये अपने एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है वो आपका डाई एसिडिक बेस है. For water insoluble hydroxide, acidity is equal to the number of replaceable hydroxide ions in one molecule of that base. अगर water insoluble है तो कितने OH ion आप replace कर सकते हैं?
Triacetic base, if it is the base that is associated in aqueous solution to produce 3 hydroxide ion. 3 अगर हाइड्रोक्साइड दे रहा है, what is triacetic base? Triacetic base which produces 3 hydroxyl ions. You can see here, or it contains 3 replaceable hydroxyl ions per molecule. Example आपको याद करने हैं सबके, aluminium hydroxide and iron hydroxide. हाउ विल यू प्रिपेयर अ बेस? बेस बनाएंगे कैसे? ठीक है, बेस बनाने के तरीके। तो सबसे पहला है हमारा फ्रॉम मेटल्स, यू हैव टू लर्न दिस। सो प्रिपरेशन ऑफ बेस फ्रॉम मेटल। तो चूंकि आपने क्या बोला, व्हाट इज़ अ बेस? बेस क्या है? बेस है मेटल ऑक्साइड, यानी मेटल का रिएक्शन किसके साथ करा देंगे? ऑक्सीजन का, तभी तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। तो मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करा दिया तो हमारा मेटल ऑक्साइड बन गया, जो कि बेस है। इजी। So metal reacting with oxygen will give you metal oxide and metal oxide is the base. तो पहला वाला समझ में आ गया। फिर आपने क्या बोला, metal hydroxide is also a base। तो metal hydroxide कैसे बनाएंगे? metal का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? वाटर के साथ। तो आपका क्या बन जाएगा? metal hydroxide। लेकिन इतना ध्यान रखेंगे, when active metals, ओके, when active metals कौन से होते हैं? आपकी रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद करनी पड़ेगी। रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग जो टॉप पे हैं वो आपके एक्टिव मेटल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, दीज आर नोन एज एक्टिव मेटल्स। व्हेन दीज एक्टिव मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर, कोल्ड वाटर ही चलेगा इसमें, कोल्ड वाटर। क्यों? क्योंकि एक्टिव मेटल्स हैं तो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट करेंगे। इफ यू रिमेंबर, वी हैव स्टडीड इन वाटर चैप्टर, तो दे विल इन क्लास 9th। सो वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट करेंगे रिएक्टिव मेटल एंड विल गिव अ बेस एंड हाइड्रोजन गैस विल बी given out, will be liberated। तो ये याद रखना है आपको कि एक्टिव मेटल्स के साथ, कोल्ड वाटर के साथ बेस बनेगा और जो गैस निकलेगी दैट विल बी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा आप, जब रिएक्टिव मेटल के साथ कोल्ड वाटर के साथ होगा तो हमेशा सॉल्युबल बेस बनेगा, सॉल्युबल बेस बनेगा। ओके, ये वाला जो है सॉल्युबल बेस। तो सॉल्युबल बेस बनाने का तरीका क्या है? सॉल्युबल बेस बनाने की रेसिपी क्या है? रिएक्टिव मेटल प्लस कोल्ड वाटर विल गिव यू सॉल्युबल बेस एंड हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड। फिर क्या हो गया? मेटल ऑक्साइड्स के साथ भी जब हम वाटर को रिएक्ट करते हैं बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन सॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड्स, सॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड हम लेते हैं जब हमारा, तो भी हमारा क्या बनता है? तो भी हमारा बनता है बेस बन जाता है। तो अब आपको ये देखना है यहाँ पे, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, दे विल रिएक्ट विथ वाटर टू गिव एल्कोहल। फोर्थ मेथड इज बाय डबल डिकम्पोजिशन। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा एक सॉल्युबल सॉल्ट। अब यहाँ पे सॉल्युबल सॉल्ट कैसे पता चलेगा? बिकॉज इट इज सेइंग दैट यू हैव टू टेक एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट। एक्वस सोल्यूशन मतलब सोल्यूशन बनना है, मतलब वो कैसा होना चाहिए? सॉल्ट, वो सॉल्युबल होना चाहिए। तो यू हैव टेकन सॉल्युबल सॉल्ट एंड यू हैव रिएक्टेड इट विद बेस। बेस मतलब एल्कली के साथ आपका उसका रिएक्शन होना चाहिए, शुड बी एल्कली। तो दोनों चीज़ सॉल्युबल, बेस भी सॉल्युबल और सॉल्ट भी सॉल्युबल। तो हमारा क्या बनेगा? इनसॉल्युबल बेस बनेगा हमारा और नॉर्मल सॉल्ट बनेगा। तो इसको इस तरह से याद करेंगे कि व्हेन वी टेक बोथ सॉल्ट एंड बेस एज सॉल्युबल, वी विल गेट इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड, इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड, basic hydroxide, and normal salt will be produced by the action of oxygen on metal sulfide। जो मेटल सल्फाइड है उसका रिएक्शन कर देंगे हम ऑक्सीजन के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस विल बी गिवन आउट। ठीक है, नाउ अनदर मेथड इज बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट। कैसे? कोई सॉल्ट लेंगे आप, सपोज आपने लिया मेटल कार्बोनेट और उसको आपने हीट कर दिया, तो वो किस में ब्रेक डाउन कर जाएगा? मेटल ऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी गिवन आउट। तो कार्बोनेट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाएगी, नाइट्रेट होगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जाएगी। सो दिस वे बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सम सॉल्ट्स यू कैन प्रोड्यूस बेस। मेटल कार्बोनेट्स will give you basic oxides and carbon dioxide,
सोडियम एंड पोटेशियम कार्बोनेट्स डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग, ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिएक्शन ऑफ हीट क्या है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट के साथ बहुत स्टेबल होते हैं हीट पे। तो सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स जो है दे विल नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग, तो सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड नहीं बनेगा इस वाले मेथड से। ओके, देन नाइट्रेट्स लेंगे अगर हम, मेटल नाइट्रेट, तो हमारा क्या बनेगा, अगेन सेम, बेसिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। यहाँ पे 3 चीज़ें बनेंगी, तो आपको याद रखना है। मेटल नाइट्रेट विल गिव यू बेसिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। सोडियम एंड पोटेशियम नाइट्रेट ऑल्सो डू नॉट गिव मेटल ऑक्साइड व्हेन डिकम्पोज। कोई भी सॉल्ट है सोडियम और पोटेशियम का बहुत स्टेबल है हीट पे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिंपली डिजॉल्विंग अमोनिया गैस इन वाटर। तो अमोनिया गैस को जब वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, बिकॉज अमोनिया इज एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन वाटर। दिस वी विल स्टडी लेटर व्हेन वी विल स्टडी ऑफ कंपाउंड्स। देन व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस और एल्कली। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं। दे हैव अ शार्प एंड बिटर टेस्ट, बहुत ही कड़वा सा टेस्ट होता है बेस का। दे चेंज द कलर ऑफ द इंडिकेटर, इंडिकेटर के कलर आपको याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा कलर क्या चेंज हुआ है कलर में। तो लिटमस जो है वो रेड टू ब्लू, मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज टू येलो, और फिनोफ्थलीन कलरलेस टू पिंक। इनसॉल्युबल बेसिस डू नॉट अफेक्ट इंडिकेटर्स, इंपॉर्टेंट लाइन। ये सिर्फ कौन करता है, ये सिर्फ सॉल्युबल बेसिस करते हैं। इनसॉल्युबल बेसिस इंडिकेटर के कलर को इफेक्ट नहीं करते हैं। दे आर सोपी सब्सटेंस, टच में स्लिपरी होते हैं बेसिस। सो कलर ऑफ दिस थिंग हैज़ कम इन 2020 एग्जाम ऑल्सो। दे हैव आस्क्ड कलर ऑफ फिनोफ्थलीन इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड बेसिक सॉल्यूशन। सो इसलिए कलर बहुत ही जरूरी है याद करना, कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सोपी सब्सटेंस है, स्लिपरी टू टच है। कॉस्टिक सोडा एंड कॉस्टिक पोटैश आर स्ट्रॉन्ग एल्कलीज। एल्कलीज रिएक्ट विथ ऑयल टू फॉर्म सोप, बहुत इंपॉर्टेंट। Alkalis react with oil to form soap. Since our skin contains oil in the form of fat, जैसे ही आप उस पर कॉस्टिक सोडा या कॉस्टिक पोटैश टच करते हैं, एक रिएक्शन टेक प्लेस करता है और सोपी सॉल्यूशन आर फॉर्म्ड. So they are soapy. That is why you can feel it. It's soapy. They are strong electrolytes. They show a mild corrosive action, that is slight burn on the skin. Chemical properties. Strong alkalis absorb carbon dioxide from the air to form carbonates. ये वाले reactions, NaOH का reaction कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब होगा तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा और वाटर बनेगा. ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एल्कलीज विथ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट विल बी फॉर्म्ड एंड वाटर विल बी फॉर्म्ड. दे न्यूट्रलाइज एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. ये सबको पता ही है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करते हैं. तो आपने जैसे ही एल्कली लिया, बेस लिया, एसिड से रिएक्शन कराया तो रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनेगा और वाटर विल बी गिवन आउट. सो व्हेन these bases or alkalis are added to the solution of salt of copper, iron और zinc, they will become insoluble hydroxide. तो NH4OH है, NH4OH को आपने CuSO4 में डाला, CuSO4 के सॉल्यूशन में डाला, यानी कि सॉल्युबल है, तो ये NH4 रिएक्ट करेगा सल्फेट से, तो NH4 अमोनियम सल्फेट बन जाएगा और बचा क्या, कॉपर हाइड्रोक्साइड. तो ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है ये कैसा है, इनसॉल्युबल है. तो जब भी हैवी मेटल के साथ करेगा तो इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड बनाएगा. The hydroxides of zinc, aluminium and lead being amphoteric by nature dissolve in excess of NaOH or KOH, but other hydroxides do not. ये भी ध्यान रखेंगे क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में कि what happens when करके. तो जो भी हाइड्रोक्साइड्स हैं, ये सारे हाइड्रोक्साइड्स जो हैं ये कॉपर के, जिंक के, एल्यूमिनियम के, लेड के, दे आर एम्फोटेरिक. एम्फोटेरिक इन नेचर. एम्फोटेरिक कौन से होते हैं, विच शोज द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ एसिड एंड बेसिस. दे रिएक्ट विथ एसिड एंड बेसिस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर. एम्फोटेरिक होते हैं दोनों नेचर इनका. सो एम्फोटेरिक मीन्स दे कैन रिएक्ट एज, दे कैन एक्ट एज एसिड ऑल्सो एंड base also, or which can react with both acid as well as base to produce salt and water. They are known as amphoteric oxides or amphoteric hydroxide. Now
You can see here that zinc hydroxide, being a amphoteric hydroxide, will react with sodium hydroxide, which is a base. So here it will be acting as acid. So it is reacting with base to give salt and water. So here it is acting as acid, zinc hydroxide, so because it is amphoteric. When alkalis are warmed with an ammonium salt, ammonia gas is given out. कोई भी alkali जब आप लेते हैं उसको आप अमोनिया सॉल्ट के साथ आप उसका रिएक्शन कराते हैं, then salt is formed, water is formed and ammonia gas is formed. तो यहाँ पे ये रिएक्शन सिर्फ किसके साथ होगा, अमोनियम सॉल्ट के साथ होगा. इसके साथ आप एल्कली का रिएक्शन कराएंगे तो आपका सॉल्ट बनेगा, आपका वाटर बनेगा और आपका अमोनिया बनेगा. सो ऑल दीज रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू लर्न देम. General uses of some bases, just you have to learn. It's important. You write this in your copies as a question, or you can write it like that, or only like notes, and to learn this. Sodium hydroxide is used in the manufacture of soap. Potassium hydroxide, manufacture of salt and soap, and used in alkaline batteries. Calcium hydroxide or slaked lime is used as for the manufacture of bleaching powder and softening of hard water. Magnesium hydroxide is used as an antacid, that is neutralizes acidity. मिल्क ऑफ मैग्नीसिया जिसको बोलते हैं वो एज एंटासिड यूज़ होता है. जो डाइजीन है आपका सिरप, वहाँ पे ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड एज अ फोमिंग एजेंट इन फायर एक्सटिंग्विशर्स. अमोनियम हाइड्रोक्साइड टू रिमूव ग्रीस स्टेन्स फ्रॉम क्लोथ्स. मैग्नीसिया in making refractory bricks. So what are refractory bricks? These are kind of bricks which are used in furnaces or fireplaces, क्योंकि ये क्या करती हैं, ये बहुत हाई टेम्परेचर विथस्टैंड कर सकती हैं, तो जल्दी ये टूटेंगी नहीं क्योंकि दे कैन विथस्टैंड हाई हीट, द हाई टेम्परेचर. सो और साथ में इनकी जो कंडक्टिविटी होती है, हीट की कंडक्टिविटी भी बहुत लो होती है, ताकि ये जो एनर्जी है उसको बहुत एब्जॉर्ब ना कर लें और अच्छे से उसको रिफ्रैक्शन कर दें, मतलब रिफ्लेक्ट कर दें. इसलिए इनकी जो एनर्जी एफिशिएंसी होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है. तो ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं आपके फर्नेसेस में और आपके फायर प्लेसेस में और ऐसी जगहों पे जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है. देन कम्स कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड को ड्राइंग एजेंट यूज़ करते हैं क्योंकि वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर को. फ्लक्स आप अभी ऐसे समझ सकते हैं कि फ्लक्स मेटलर्जी में इम्प्योरिटीज़ रिमूव करने के लिए यूज़ होता है. तो ये बेसिक फ्लक्स है जो कि इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए मेटलर्जी में यूज़ होता है. सो दिस वी विल स्टडी इन डिटेल इन मेटलर्जी चैप्टर. Acidity and alkalinity. You all know that acid and basic substance can be tested by some common indicators. And what are those indicators? Litmus, then methyl orange and phenolphthalein. And how they are tested with these indicators, actually the basis is ionization. Pure water actually ionizes to a very very small extent. That means जब आप वाटर को आयनाइज करेंगे, वाटर आयनाइज होगा तो दो तरह के आपको आयंस देगा, H3O प्लस एंड OH माइनस. ठीक है, तो ये दोनों आयंस जो हैं दे आर प्रेजेंट इन वाटर, बोथ ऑफ देम, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ऑफ देम इज इक्वल, मतलब बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा. इसीलिए वाटर न्यूट्रल है. तो लेकिन ये इनकी जो क्वांटिटी होती है वो बहुत कम होती है. दे आर वेरी वेरी लेस. एंड कितना होता है, ये होता है 1 × 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर. इसकी यूनिट आप याद रखेंगे. सो 1 × 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर इज दिस कंसंट्रेशन ऑल्सो एंड इज दिस. तो अगर हम दोनों का निकालें, प्रोडक्ट निकालें अगर हम दोनों का कंसंट्रेशन का, तो क्या होगा, वो होगा ये मल्टीप्लाइड बाय 1 × 10⁻⁻7, which comes as 1 × 10⁻⁻14 मोल स्क्वायर लीटर पर लीटर स्क्वायर. ठीक है, तो यूनिट से मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो मोल स्क्वायर हो जाएगा और लीटर स्क्वायर भी हो जाएगा पर लीटर स्क्वायर. लेकिन टेम्परेचर ये कब है, ये दिस इज एट फिक्स टेम्परेचर, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस. तो 25 डिग्री सेल्सियस पे द कंसंट्रेशन ऑफ H3O ions and OH ions in water is equal, मतलब इक्वल हमेशा होते हैं लेकिन क्वांटिटी क्या है, 1 × 10⁻⁻⁷
-7 which comes out to be 1 into 10 to the power -14 moles per liter मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये अब इसको बोलते क्या है, इस वैल्यू को बोलते हैं हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और इसका जो सिंबल है वो है Kw। सो दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जैसे बाकी सारे जो वाटर है जब वो डिसोशिएट होता है आयंस में तो इट इज एन इक्विलिब्रियम विद डिसोशिएटेड आयंस, दैट मीन्स हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोनियम एंड हाइड्रोक्साइड आयन अपने इक्विलिब्रियम में होते हैं, मतलब दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो उसको हम एक लॉ से डिनोट कर सकते हैं और बाद में हम उसकी वैल्यू निकालते हैं Kw। तो ये जो कांस्टेंट Kw है इट रिमेन्स अनचेंज्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दिस यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस। ओके, नाउ व्हेन वी ऐड एसिड टू वाटर तब क्या होगा, तो किस चीज़ का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। जैसे ही आपने एसिड डाला तो नेचुरली किस चीज़ का, क्योंकि एसिड में ये वाला आयन होता है, तो एसिड जो है H+ आयन देता है और ये वाटर के साथ मिलकर H3O आयन बना देता है। तो H3O आयन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और फिर कौन सा नेचर इंक्रीज होगा, नेचुरली जब H3O आयन्स है तो एसिडिक नेचर इंक्रीज हो जाएगा, और OH आयन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। सो दैट Kw रिमेन्स द सेम, जितना वो इंक्रीज हुआ उतना ही ये डिक्रीज हुआ, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो जो फिर है Kw की जो वैल्यू है इट रिमेन्स सेम। एंड इफ एन एल्कली इज एडेड द रिवर्स इज नोटिस्ड। फिर क्या होगा, OH आयन इंक्रीज करेंगे और H3O आयंस जो है, हाइड्रोनियम आयंस जो है वो डिक्रीज करेंगे, लेकिन जो इंक्रीज और डिक्रीज होगा वो भी बिल्कुल सेम रेट पे होगा, तो दोनों का फिर वही जो कांस्टेंट हम निकालेंगे वो सेम आएगा। सो द नेचर ऑफ सॉल्यूशन एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ H3O आयंस इन सॉल्यूशन। तो हमने एक बेसिस क्या बना लिया, हमने एक बेसिस ये बनाया कि जो भी आपको अगर कंसंट्रेशन देखना है, नेचर देखना है कि वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक, तो हम किसके ऊपर देखेंगे, वो हम देखेंगे H+ के ऊपर। एक्चुअली ये बहुत अनस्टेबल है, मैं पहले बता चुकी हूँ ये बहुत अनस्टेबल है, तो ये वाटर के साथ मिलके क्या बना लेगा, H3O+ बना लेगा। तो एक्चुअली हम ये नहीं बनता है, बनता यही है एसिड में, लेकिन हम इसको भी कह देते हैं कि H+ आयन बना, एसिड गिव्स H+ आयन। ये बहुत अनस्टेबल चीज है, तो ये हमेशा इस फॉर्म में मिलेगा। तो एसिड ऑलवेज गिव हाइड्रोनियम आयन, तो जब भी हाइड्रोनियम आयन इंक्रीज करेगा तो एसिडिटी विल इंक्रीज, एसिडिक नेचर ऑफ दैट सब्सटेंस विल इंक्रीज। तो हमने एक क्या बोलते हैं, वी हैव टेकन वन सेंटेंस कि ठीक है, जो भी नेचर होगा सॉल्यूशन का वो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन पे होगा। अगर हाइड्रोनियम आयन ज़्यादा है तो हमारा एसिडिक नेचर होगा, एंड इफ हाइड्रोनियम आयन इज लेस देन द नेचर विल बी बेसिक। तो ये हमारा एक प्रूफ आ गया। आफ्टर दिस अ डानिश बायोकेमिस्ट सोरेनसन इन 1909 he made a scale known as pH scale, and on that pH scale he used this statement only, and it works with the concentration of H3O ion. That means Sorensen का जो pH scale है it is based on the concentration of hydronium ion, and hydronium ion is given in aqueous solution, तो in aqueous solution। अब pH का हम first we will understand what is pH. So P and H, जो P है it stands for potens in German meaning power। potens German word है जिसका मतलब है पावर, और H का मतलब हाइड्रोजन है, तो हमने इसको क्या कंक्लूड किया, इसका नाम इट इज पावर ऑफ हाइड्रोजन। सो दिस इज पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब हम जल्दी से एक डेफिनेशन देखेंगे जो सोरेनसन ने अपने डिवाइस करी थी कि जिस बेसिस पे उसने ये बनाया था pH स्केल, तो उन्होंने एक डेफिनेशन निकाली इसकी कि pH ऑफ अ सॉल्यूशन, so the definition is the pH of a solution is a negative logarithm to the base 10 of the hydrogen ion concentration expressed in moles per liter। तो तीन चीजें याद रखनी है, नेगेटिव लोगारिथम है बेस 10 का और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन का, और ये यूनिट क्या है इसकी, मोल्स पर लीटर। सो पुटिंग दिस डेफिनेशन दैट pH ऑफ अ सॉल्यूशन इज अ नेगेटिव लोगारिथम, तो सबसे पहले हमने लिख लिया कि pH हमारा क्या है, we'll write pH is equal to log 10 of
ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे 1/H+, ये है हमारा डेफिनेशन, हमारी यही बोलती है इट इज़ द नेगेटिव लोगारिथम टू द बेस 10 ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो ये जो H+ है जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, ये दिस इज एक्चुअली कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस, हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा -log 10 एंड H+ आयन, ये ऊपर आया और ये माइनस इधर आ गया। तो ये हमारा डेफिनेशन बन गई है हमारी। नाउ देयर इज अ सॉल्यूशन इन विच H+ आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 to the power -12 मोल्स पर लीटर। अब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे किस तरीके से हम pH निकालते हैं। pH निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला आपको पता है कि log 10 नेगेटिव लोगारिथम ऑफ बेस 10 ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो ये हमारा बन गया, हमारा फॉर्मूला आ गया हमारा, जिससे हमें काम करना है। अब हमें H+ आयन का कंसंट्रेशन दिया गया है, दैट इज 10 to the power -12 मोल्स पर लीटर। तो अब हम इसको वैल्यू डाल देंगे इसकी अपने इस वाले फार्मूला में, देखते हैं। तो हमारा हो जाएगा log 10 1/10 to the power -12। अब h की जगह जो वैल्यू है वो हमने डाल दी, दैट इज 10 to the power -12। अब हमें ये -12 को ये ऊपर लेके जाना है यहाँ पे, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा log 10 log बेस 10 to the power 12। ये हमारा आ गया स्टेटमेंट, क्योंकि ये जो ऊपर चला गया तो ये जो माइनस का साइन था ये प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब आपको प्रॉपर्टी ऑफ लॉग पता ही है, ये आपने मैथ्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें इसमें जाना नहीं है, बट स्टिल ये जो पावर होती है ये यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाती है, ये लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग में पढ़ेंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 12 log टू द बेस 10, और ये 10 यहीं रह जाएगा। ठीक है, बस ये 12 उठ के इधर आ जाएगा। अब हमें log 10 की वैल्यू जो है वो हमें मालूम होनी चाहिए। log बेस 10 की वैल्यू, ये इसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए क्या है, तो इसकी वैल्यू हमारी होती है 1। log बेस 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 की वैल्यू होती है 1। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो 12 × 1 इज इक्वल टू 12। तो pH क्या आ गया हमारा, pH आ गया हमारा 12। तो इस तरीके से हम अगर हमें कंसंट्रेशन दिया हुआ है H+ आयन का, तो हम pH उसका निकाल सकते हैं। ओके, एंड वाइस वर्सा, अगर आपको pH दिया हुआ है तो आप उसका H+ कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट हियर इन योर सिलेबस। तो आपको बस इतना ही है। तो आपको बस ये करना है कि बहुत इजी तरीका है इसका, कि जो भी वैल्यू दी हुई है 10 to the power -12 दी हुई है, तो उसका pH होगा 12। अगर 10 to the power -3 वैल्यू दी हुई है तो उसका pH होगा 3। अगर 10 to the power -5 दी हुई है तो उसकी वैल्यू होगी 5। तो एक्चुअली में pH वही रहता है, जो पावर होती है वही होता है, एक्सक्लूडिंग द माइनस साइन। तो इस तरीके से अगर 5 क्वेश्चन आता है कि द H+ कंसंट्रेशन इज दिस एंड फाइंड आउट द pH, तो यू विल बी फाइंडिंग आउट। इसका आपको ये पूरा कैलकुलेशन करके नहीं निकालना है, वैल्यू निकालनी होती है बहुत, लेकिन फिर भी अगर आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली कैसे निकाला है, दैट इज़ व्हाई आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका एक मैथमेटिकल फंड, इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, लॉग प्रॉपर्टी हैं। तो जब लॉग आप पढ़ेंगे तो आपको ढंग से ये चीज़ समझ में आएगी किस तरीके से जो पावर है वो आके आके मल्टीप्लाई हो रही है, एंड देन इस तरीके से। ठीक है, अब तो pH निकालना उनको समझ में आ गया कैसे H+ कंसंट्रेशन से वो pH निकालते हैं। तो अब उन्होंने एक टेबल बनाया, जिसको स्केल बनाया, जिसको हम बोलते हैं pH स्केल। एंड व्हाट डज इट कंटेन, इट कंटेन्स नंबर्स फ्रॉम 0 to 14। 0 से 14 तक का नंबर जो है वो उन्होंने उस पर डाला, और बताया उन्होंने कि नॉर्मल pH जो होती है, न्यूट्रल pH जो होती है, दैट इज नंबर 7। सो वाटर हैज़ अ न्यूट्रल pH दैट इज 7।
और 7 से 14 मतलब बड़े नंबर की तरफ जब चलेंगे तो अल्कलाइन नेचर हमारा या बेसिक नेचर हमारा इंक्रीज करेगा, इस डायरेक्शन में हमारा बेसिक नेचर इंक्रीज करेगा। और जैसे ही नंबर कम होते जाएंगे तो वैसे ही हमारा एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर H+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, H+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो pH की वैल्यू कम होगी। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो वो उल्टा चलेगा, pH की वैल्यू या नंबर कम होगा। देखें pH की वैल्यू होती है हमारी 0 से 6 तक, तो इसके कंसंट्रेशन ज़्यादा होते हैं यानी एसिडिक होता है। अगर H+ कंसंट्रेशन या H+ की जो कंसंट्रेशन है वो लेस है तो जो pH की वैल्यू आएगी वो ज़्यादा आएगी, वो आएगी आपकी 8 से 14। तो ये थोड़ा इसको समझ के चलेंगे, बिकॉज इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो वी कैन से दैट pH इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू pH value, okay, is inversely proportional to hydronium ion. More the value of pH, less is the concentration of H+. Less is the value of pH, more is the concentration of H+. So the number 7 on the pH scale represents the neutrality of the solution. Neutral solution हो जाएगा pH अगर 7 हो जाएगी तो। Less than 7 acidic nature, और अगर ग्रेटर देन 7 तो बेसिक नेचर इंक्रीजेस। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। इन अ कलरलेस लिक्विड अ रीजनेबल एक्यूरेट pH वैल्यू कैन बी ऑब्टेन बाय एडिंग अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब एक यूनिवर्सल इंडिकेटर्स भी हैं जो आप किसी कलरलेस लिक्विड में इसको डाल के आप उसका कलर चेक कर सकते हैं। देखेंगे इसको कि क्या है। यूनिवर्सल इंडिकेटर एक्चुअली एक मिक्सचर है जिसमें बहुत सारे डाइज और मिले हुए हैं, और हर डाई का जो रंग है मतलब हर कलर इंडिकेट करता है कि वो अल्कलाइन है या एसिडिक है, मोर टुवर्ड्स एसिडिक है, लेस टुवर्ड्स अल्कलिनिटी है। तो ये कलर से हम इसको समझ में आता है। तो स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स, देयर इज अ vast range of colors in between and it gives different color in different concentration of H+. एग्जाम्पल देखेंगे कि यूनिवर्सल इंडिकेटर प्रोड्यूसेस ग्रीन कलर इन न्यूट्रल सोल्यूशन। तो 7 जब pH होगा तो जो कलर होगा न्यूट्रल सोल्यूशन का वो ग्रीन होगा, और धीरे धीरे व्हेन इट चेंजेस इन अ बेसिक सोल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू वायलेट एज pH इंक्रीजेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम 7 to 14. The color change in the acidic solution is from yellow to pink. पहले येलो होगा, फिर पिंक होगा, फिर रेड होगा, तो इसका मतलब एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। लेट्स सी द फिगर। सो देखते हैं कैसे कलर चेंज होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर में फॉर डिफरेंट pH वैल्यूज। सो यू कैन सी हियर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस इज गिवन एंड उसके नीचे उसका कलर दिया हुआ है। तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस इज गिवन इन मोल्स पर लीटर। तो अगर 1 है वैल्यू pH की, यानी कि 10⁻⁻1 होगा हमारा H+ आयन, जैसा भी पीछे पढ़ा था हमने। और अगर हमारी pH वैल्यू 2 है दैट मीन्स कंसंट्रेशन विल बी, तो ये आप pH वैल्यू इससे आराम से निकाल सकते हैं इससे कि अगर 10⁻1 है तो 1 होगी, 10⁻4 है तो 4 होगी, 10⁻13 है तो 13 होगी, एंड सो ऑन। So what is the color actually? So color will be red in case of acidic nature, or color will be violet in case of basic nature, and color would be green when it is a neutral this thing. अब देखेंगे रेड और पिंक के बीच में यहाँ पे कई शेड्स होंगे, धीरे धीरे ट्रांजिशन होगा रेड से पिंक का। एकदम नहीं कि रेड से एकदम पिंक हो गया। रेड से पिंक होने में तो फिर लाइट रेड होगा, फिर थोड़ा और लाइट रेड होगा, फिर हल्का सा लाइट पिंक होने लगेगा, फिर थोड़ा सा डार्क पिंक होगा। तो इस तरीके से शेड्स वेरिएशन होते हैं। आपने कंप्यूटर्स में जब आप शेड कार्ड निकालते हैं तो यू मस्ट हैव सीन द ट्रांजिशन। तो वो कलर एकदम से चेंज नहीं होता, उसके पीछे मल्टीपल शेड्स होते हैं। तो ऐसे ही इस पूरे स्केल में भी मल्टीपल शेड्स हैं, तो हर एक शेड का अपना अलग वो आएगा, हमारा कलर आएगा। जो भी कलर उसके अकॉर्डिंग हम स्केल के ऊपर रख के उसको कलर से आइडेंटिफाई करेंगे कि वो पिंक और रेड के बीच में है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन एसिडिक नेचर है, लेकिन कैसा है, बहुत ज़्यादा एसिडिक मतलब रेड नहीं है, पिंक है तो उसकी pH वैल्यू करीब 3 या 2 के बीच में होगी। अगर लाइट पिंक है तो इस तरीके से डिफरेंट कलर्स को हम यहाँ से देखेंगे।
ना व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारे जो एवरीडे लाइफ है उसमें पीएच की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। आपने देखा होगा कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जब एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है, तो यू हैव टू टेक सम एंटासिड्स। तो उसी तरीके से लेट्स सी दैट हाउ पीएच वर्क्स इन एवरीडे लाइफ। हमारी बॉडी का जो पीएच है वो दैट इज 7 to 7.8 है। 7.8, 7 मतलब न्यूट्रल और 7.8 मतलब वो बढ़ रहा है किस तरफ, वो बढ़ रहा है बेसिक की तरफ ना, 7 से 8 की तरफ जा रहा है, तभी तो 7.8 है। तो 7 और 7.8 इसके बीच में रहता है हमारा बॉडी का पीएच, और इसी रेंज में हमें सरवाइव करना होता है। अगर इससे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा तो भी नुकसान है हमारे लिए, और अगर एसिडिक हो जाएगा तो भी नुकसान है। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो सर्वाइव इन अ नैरो रेंज। एग्रीकल्चर में हर जो क्रॉप है वो एक पर्टिकुलर उसकी पीएच रेंज है। राइस ग्रोज इन स्लाइटली एसिडिक सॉइल, शुगर केन न्यूट्रल में होता है, सिट्रस फ्रूट्स अल्कलाइन यानी बेसिक में होते हैं। तो हर एक मतलब एग्रीकल्चर में भी हमें इसकी ज़रूरत होती है। अगर हमें मान लीजिए बेसिक सॉइल चाहिए है ना, सिट्रस फ्रूट लगाने हमें बेसिक सॉइल चाहिए, लेकिन आपकी जो सॉइल है वो थोड़ी एसिडिक है, तो आप क्या करेंगे, उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। क्या ऐड करेंगे उसमें, तो उसमें आप थोड़ा सा चूना ऐड करेंगे, क्विक लाइम जिसको बोलते हैं। जैसे आप क्विक लाइम ऐड करेंगे तो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट को अल्कलाइन बनाएगा। तो इस तरीके से हम डिफरेंट एग्रीकल्चर के लिए विल बी यूजिंग, we will be checking the soil and then we will be putting the crop. If pH 5.6 से कम है किसका, रेन वाटर का, तो वो एसिड रेन हो जाती है। 5.6 तक तो ठीक है, दैट मीन्स 6 से मतलब 7 से चले, 7 से कम होना चाहिए, 6.8, 6.7, देन 5.9, 5.8, तब तक तो ठीक है, तब तक तो इट इज़ नॉट एसिड रेन। लेकिन जैसे ही पीएच 5.6 से लेस होना शुरू होती है तो जो रेन वाटर इट बिकम्स एसिडिक। और आपने पढ़ा है क्लास 9th में कि व्हाट इज़ द इफेक्ट और हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। कौन सा एसिड होता है उसके अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड, जो कि एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स से बनते हैं। और वो कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। एसिड रेन क्या करती है, इट रिड्यूसेस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, destroys marine life and causes damage to monuments. मेडिसिन में कुछ डिजीज़ जो हैं हमारी वो पीएच पे, जो यूरिन और ब्लड का पीएच है उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट में पता चलता है कि इनका पीएच कुछ गड़बड़ है, तो फिर डिपेंडिंग अपॉन दैट पीएच दे विल फाइंड आउट द रिलेटिव डायग्नोसिस अबाउट द डिजीज़. In digestive system, hydrochloric acid is there in the stomach which helps in digestion, and if it becomes in excess, the pH falls. pH falls का मतलब उसकी वैल्यू कम हो रही है, वैल्यू कम हो रही है मतलब वो एसिडिक मीडियम में जा रहा है। और फिर क्या होता है, पेन होता है, इरिटेशन होता है, और हम क्या यूज़ करते हैं, एंटासिड्स। वो क्या है, वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अ बेस। तो हमने एसिड है पेट के अंदर, उसमें बेस डाल दिया तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, सॉल्ट एंड वाटर बन गया। ना इन प्रिवेंटिंग टूथ डिके, जैसे आप ज़्यादा स्वीट्स खाते हैं, ज़्यादा चॉकलेट्स खाते हैं, तो वो हमारे माउथ में ही उनका डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो वो जो बैक्टीरियल डिग्रेडेशन होता है माउथ में, उसकी वजह से हमारे जो माउथ का पीएच है वो 5.5 से नीचे गिर जाता है, एंड दैट इज़ वाई आपका जो माउथ है वो क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। तो वो टूथ डिके स्टार्ट कर सकता है इफ़ योर माउथ बिकम्स द पीएच फॉल्स टू 5.5। जो हमारा टूथ इनामल है वो क्या है, हमारा जो टूथ इनामल है वो है कैल्शियम फॉस्फेट, जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस हमारा टूथ इनामल है, जो हमारे दांतों के ऊपर इनामल चढ़ा हुआ है वो हमारा सबसे हार्डेस्ट है। वो करोड होने लगता है, मतलब वो करोजन स्टार्ट हो जाता है, और वो लाइन जो है, इनामल की लाइन जो है पतली होने लगती है, और वो इतनी पतली हो जाती है कई बार कि हमारे जो अंदर टूथ के अंदर जो नर्व्स हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं, और हमें सेंसिटिविटी होने लगती है, ठंडा और गर्म लगने लगता है ना दांतों में। सो दैट हैपन्स बिकॉज अवर इनामल लेयर बिकम्स लेस ड्यू टू दिस करोजन। तो उसको बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले तो गॉड ने ही हमारे लिए सलाइवा जो है हमारा बेसिक है नेचर में, तो सलाइवा मुंह में रहता है जिसकी वजह से वो एसिडिटी डिक्रीज होती रहती है। बाकी हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, और टूथपेस्ट क्या है, बेस। सो टूथपेस्ट
कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं एक्सेस एसिड को? बिकॉज टूथपेस्ट कंटेन बेस। ज़्यादातर टूथपेस्ट में कोई ना कोई बेस होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है। सम बेस इज देयर विच विल न्यूट्रलाइज योर एक्सेस एसिड इन द माउथ। वेन एवर देयर इज अ बी स्टिंग, तो बी स्टिंग्स जो है वो एसिड होता है और वो एसिड हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देती है जो बी होती है। तो अगर आप उसके ऊपर बेकिंग सोडा या टूथपेस्ट भी लगा लेते हैं ना, तो आपको उससे रिलीफ मिल जाता है, बिकॉज बेकिंग सोडा इज अ बेस। सो जो एसिड है वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है इन दिस वे। और कौन सा एसिड होता है बी स्टिंग में? इट इज़ फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड जो होता है बहुत ही लाइट एसिड होता है, तो वो वहाँ पे बेकिंग सोडा लगाने से उसका जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। Now starting with the next topic, that is salt. Preparation of salt is omitted from the syllabus with this here. तो हमारे जो syllabus में है that is only salt and the types of salt, that is normal salt, acid salt and basic salt, and action of dilute acids on salt. So let's start first the definition, that what is a salt. You have to understand that what definition says that salt is a compound formed by partial or total replacement of ionizable hydrogen atoms of an acid by a metallic ion or ammonium ion. तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि बोलना क्या चाह रहे हैं. How many acids we know? We'll write some common acids. I have written H2SO4, then I have written HCl, then I have written HNO3, then I have written carbonate salt, carbonic acid, that is H2CO3. Okay, HNO3, HCl, okay. So these are some common acids which we know. Now you can see here in this acid there are these hydrogens which can be replaced. They can be replaced by a metallic ion or an ammonium ion. Now when these hydrogen of acid are replaced by some metal ion or ammonium ion, salt is formed. ठीक है, पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं. सब में हम सोडियम ले लेंगे. अभी हम सोडियम जो है हमारा मेटालिक आयन है, तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा? यहाँ हमारा बनेगा Na2SO4. H रिप्लेस होके क्या आ गया उसकी जगह? सोडियम आ गया. Here NaCl. ओके, here सो यू कैन सी हियर, अभी मैंने एग्जाम्पल सोडियम का लिया है, तो सोडियम जो है उसने रिप्लेस कर दिया है इसको सारे ही हाइड्रोजन को, और वहाँ पे क्या बना दिए हैं? सॉल्ट बना दिए हैं. तो ये सॉल्ट हैं, दीज आर सॉल्ट. सो व्हाट आर सॉल्ट? सॉल्ट इज दैट व्हेन आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयंस आर रिप्लेस्ड फ्रॉम एसिड्स. एसिड में से हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया अगर किसी मेटल ने, तो वो क्या बन गया? सॉल्ट बन गया. या इसकी जगह अमोनियम आयन भी कह सकते हैं. तो अगर अमोनियम आयन भी है इसकी जगह तो भी वो सॉल्ट बनाएगा. ठीक है. सो दिस इज सिंपल डेफिनेशन जो हमारी डेफिनेशन है. अब इस डेफिनेशन में आप देखेंगे कि इसमें वर्ड यूज किया गया है पार्शियल और टोटल रिप्लेसमेंट. तो अब पहले इसको समझेंगे कि व्हाट इज पार्शियल एंड टोटल. सो फर्स्ट इज पार्शियल रिप्लेसमेंट. पार्शियल रिप्लेसमेंट में क्या हो रहा है? जहाँ पे टोटल जो हाइड्रोजन है रिप्लेस होने वाले, वो टोटल ना रिप्लेस होके हाफ रिप्लेस हो रहे हैं. एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे हम H2SO4. मान लीजिए इस H2SO4 के पास सोडियम आता है और पूरा रिप्लेस मतलब Na2SO4 ना बना के एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस करता है. एक हाइड्रोजन रिप्लेस करता है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करता है, तो एक H ऑलरेडी रह जाता है. यहाँ पे देखेंगे HSO4 बचता है और यहाँ पे लग जाता है सोडियम. तो ये हमारा जो सॉल्ट बना NaHSO4, ये पार्शियल डिस्प्लेसमेंट से आया है. मतलब कि ऑलरेडी H2SO4 is di-basic, means it has got two hydrogen which can be replaced, but both the hydrogen are not replaced, only one hydrogen is replaced, and thus it is partial replacement of ionizable hydrogen atoms by a metallic ion. Then it is known as partial replacement. Salt ये भी है, this is also salt, NaHSO4, this is also salt.
बट ये किससे बना है, ये पार्शियल रिप्लेसमेंट से बना है। तो फिर सॉल्ट की डेफिनेशन को अब ये सारे एग्जाम्पल्स एक बार अपने दिमाग में रख के अगेन वील गो बैक टू द डेफिनेशन एंड व्हाट डेफिनेशन सेज, इट सेज दैट salt is a compound, whatever compound is formed by partial or total replacement of ionizable hydrogen atoms of an acid by a metallic ion or an ammonium ion. या तो मेटालिक आयन से रिप्लेस हो जाए या अमोनियम आयन से रिप्लेस हो जाए, तब सॉल्ट बनता है। यहाँ पे इन्होंने ये दोनों एग्जांपल्स दिए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे दैट दिस H2SO4 हाइड्रोजन, ओनली वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड, तो सॉल्ट बन गया। और यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए उन्होंने, तो यहाँ पे भी आपका सॉल्ट बना है। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन रह गया है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। ये टेम्परेचर स्पेसिफिक है। यहाँ पे देखेंगे इफ टेम्परेचर इज लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस फॉर दिस रिएक्शन देन ओनली partial replacement will happen, and if the temperature is more than 200 degrees Celsius then total displacement or replacement happens of the hydrogen atom. तो अभी हमें डेफिनेशन यहाँ पे समझ में आ गई है कि क्या डेफिनेशन है, कि जब एसिड के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा इधर मेटालिक आयन और अमोनियम आयन, इधर इट इज पार्शियल और it is total, then a salt is formed. Okay, now coming up to the definition, but before that definition we should understand that salt will only be formed when we get salt is only formed when we get metal ion with acid का negative वाला part. सो सोडियम के साथ अगर सल्फेट लग गया तो आपका क्या बन गया, आपका सॉल्ट बन गया। सोडियम के साथ क्लोराइड लग गया तो भी कौन से एसिड से आया है, क्लोराइड कौन से एसिड से आएगा, HCl से आएगा, यानी ठीक है ये भी एसिड से आया है। सल्फेट हो गया, क्लोराइड हो गया, नाइट्रेट हो गया, NO3, ये कहाँ से आया है, ये भी नाइट्रिक एसिड से आया है, ठीक है। कार्बोनेट हो गया, कार्बोनेट भी कहाँ से आया है, कार्बोनेट भी कार्बोनिक एसिड से आया है। तो अगर किसी मेटल के साथ क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट ये वाले रेडिकल्स लगे हुए हों तो उसका मतलब कि वो सॉल्ट है, ठीक है। उसको समझने के लिए आई एम गोइंग टू गिव यू वन एक्टिविटी विच विल बी डूइंग सो दैट यू विल कम टू नो दैट व्हाट इज सॉल्ट। So you can see this table here on the screen. You have to write the formulas of the salt in the table below by replacing hydrogen ion in these acids. There are many metal ions are present, but I have given you example of only 4. So you can just make the formula. Note down this activity in your copy and complete the formula, and then you can check your answers later on that what is the formula of sodium sulfate, what is the formula of sodium chloride, then sodium nitrate or sodium carbonate. So this way, by crisscross, which you have learned how to make formula with the radical, you can make the formulas, and then these are all salts because they have come by replacing hydrogen ions from the acids. And who has replaced those hydrogen ions, metal ions and or ammonium ions. Okay, now ionic definition of salt. That salt is an ionic compound which dissociates in water to yield a positive ion other than hydrogen ion and a negative ion other than हाइड्रोक्सिल आयन। नाउ दिस डेफिनेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो सॉल्ट है वो आयनिक होता है नेचर में, और जब उसको हम पानी में डिजोल्व करते हैं, वेन एवर इट इज एडेड टू वाटर, इट शुड ऑलवेज गिव अ कैट आयन एंड एन एनायन, ठीक है। पहले तो ये हमने समझ लिया कि वेन एवर सॉल्ट इज पुट इन वाटर, वाटर में डाल दिया हमने, तो इट शुड ऑलवेज गिव कैट आयन एंड एनायन, इट शुड ऑलवेज गिव कैट आयन एंड एनायन। बट यहाँ पे जो मेन चीज़ समझने की है वो ये है कि इट शुड यील्ड कटायन वन अदर देन H+ ion
and one other than OH minus ion. इसका क्या मतलब हुआ, जो सॉल्ट है वो हमें कैटायन देना चाहिए उसको जिसमें H प्लस ना हो और सिर्फ वन अदर देन दिस, मतलब उसमें H प्लस भी हो सकता है, उसमें OH माइनस भी हो सकता है सॉल्ट में। तो अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि सॉल्ट में H प्लस नहीं हो सकता, OH माइनस नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। टुडे यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। अभी हमने बात करी, देखो आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है NaHSO4, आपको इसमें H नज़र आ रहा है ना। अगर मैं इस NaHSO4 को डिसोशिएट करूँ तो ये क्या क्या देगा, जस्ट सी, it will give sodium ion, it will give hydrogen ion and it will give sulfate anion. तो यानी कि ये 2 आयन दे रहा है, देखो। तो अदर देन हाइड्रोजन आयन इट शुड गिव एटलीस्ट 1 कैटायन अदर देन हाइड्रोजन आयन। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने में। इसको आपको समझना है कि जो सॉल्ट है उसमें अदर देन H प्लस आयन भी एक कोई पॉजिटिव आयन होना चाहिए। वैसे तो जैसे नॉर्मल सॉल्ट है NaCl, अब आप उसको डिसोशिएट करोगे तो नेचुरली आपको क्या मिलेगा, Na प्लस एंड Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे H नहीं है, लेकिन H नहीं है तो H के अलावा एक और कैटायन है ना, Na प्लस कैटायन है, तो इसका मतलब ये सॉल्ट है। और OH के अलावा एक एनायन है, तो यानी ये सॉल्ट है। लेकिन एक और एग्जाम्पल देखते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड। अब अगर मैं इसको डिसोशिएट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, कौन कौन से इसमें मुझे आयन मिलेंगे, इसमें मुझे मिलेंगे Cu2 प्लस एंड OH माइनस। तो अब बताओ इसमें, ठीक है, इसमें हमें ये तो समझ में आ गया कि इसमें हमें जो कैटायन है वो तो मिला H प्लस से अलग, लेकिन एनायन OH नेगेटिव से अलग नहीं मिला, OH नेगेटिव मिला, इसलिए ये सॉल्ट नहीं है। दिस इज नॉट सॉल्ट because it contains no anion other than OH negative. इसको सारे को एक बार फिर से I'm going to explain so that you understand it clearly because this concept has to be understood. Salt में आपको पता होना चाहिए कि salt क्या है। तो salt क्या है, 1 to yield a positive ion other than hydrogen ion and a negative ion other than hydroxyl ion, वन ओके, यहाँ पे आप 1 ऐड कर लेंगे तो आपकी डेफिनेशन थोड़ी और प्रॉपर हो जाएगी। 1 अदर देन हाइड्रोजन आयन एंड 1 अदर देन नेगेटिव आयन, दैट इज 1 अदर देन हाइड्रोक्सिल आयन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए हमने ले लिया लेड हाइड्रोक्साइड। अब इसमें जब हम वो करेंगे, इसको डिसोशिएट करेंगे तो हमें आयन मिलेगा Pb2 प्लस और OH नेगेटिव। तो यहाँ पे अदर देन H प्लस आयन तो है, तो यानी ये तो ठीक हो गया, पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। लेकिन एनायन अदर देन OH नेगेटिव आयन नहीं है, यानी कि ये सॉल्ट नहीं है। दिस इज नॉट अ सॉल्ट। क्योंकि सॉल्ट कौन होता है, वो जो H प्लस आयन के अलावा एक पॉजिटिव आयन दे और OH नेगेटिव आयन के अलावा एक नेगेटिव आयन दे, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी सम एग्जांपल ऑफ सॉल्ट्स बाय दिस डेफिनेशन। सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड में अभी आपको एग्जांपल देके बताया था कि इसमें यस अदर देन पॉजिटिव आयन है सोडियम, अदर देन OH नेगेटिव आयन है क्लोराइड, तो यानी कि ये सॉल्ट है। दिस इज सॉल्ट, राइट। ओके, टेक वन मोर एग्जांपल, आपकी बुक से ही उठाते हैं। NaHSO4, ठीक है, इसमें सोडियम आयन बनेगा, H प्लस आयन बनेगा और SO4 2 नेगेटिव सल्फेट आयन बनेगा। तो 1 पॉजिटिव आयन अदर देन H प्लस, yes it is there, 1 negative ion other than OH negative ion, yes it is there, so this is a salt, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपकी बुक से उठाते हैं। Na2SO4 आयनाइज करेगा Na प्लस SO4 2 माइनस, so 1 positive ion other than H plus, yes, 1 negative ion other than OH negative, yes, so this is a salt, okay। तो ये आपको याद रखना है।
ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स, किस तरीके के सॉल्ट्स होते हैं? सो देयर आर नॉर्मल सॉल्ट, एसिड सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, डबल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। लेकिन आपके सिलेबस में क्या क्या है? आपके सिलेबस में सिर्फ हैं नॉर्मल सॉल्ट्स, एसिड सॉल्ट्स एंड बेसिक सॉल्ट्स। तो उनकी डेफिनेशन और उनके एग्जाम्पल्स ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको करने हैं। सो फर्स्ट विल टेक अप विथ नॉर्मल सॉल्ट। क्या होते हैं नॉर्मल सॉल्ट? So normal salts are the salts formed by a complete replacement, keyword आ गया आपका, complete replacement of ionizable hydrogen atoms of an acid by a metallic or an ammonium ion। जो हमने actually salt की definition पढ़ी थी ना, तो वो जो definition थी उसमें सिर्फ एक वर्ड आप रिमूव करेंगे। जो पहली डेफिनेशन में पढ़ी थी कि सॉल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म बाय पार्शियल और टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ द आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम, इसमें आप पार्शियल वर्ड हटा देंगे तो आपका नॉर्मल सॉल्ट की डेफिनेशन आ जाएगी। क्योंकि नॉर्मल सॉल्ट वो सॉल्ट्स हैं जो कंप्लीट रिप्लेसमेंट पे बनते हैं। कंप्लीट रिप्लेसमेंट पे बनते हैं, एग्जाम्पल देख लेंगे यहाँ पे। देखिए HCl, NaOH, ये H पूरा पूरा रिप्लेस कर दिया सोडियम ने, ठीक है, ये H पूरा पूरा रिप्लेस करा और NaCl बन गया, और ये इस H को OH ने मिला के अपने साथ वाटर बना लिया। तो कंप्लीट रिप्लेसमेंट। यहाँ पे भी देखें 2H है यहाँ पे, तो यहाँ पे इस सोडियम ने दोनों को रिप्लेस कर दिया। तो 2H को रिप्लेस करने के लिए हमारे कितने सोडियम लगे? 2 लगे, तो Na2, ठीक है। और उसके बाद बचा हमारा सल्फेट, सल्फेट आ गया, और यहाँ पे हमारे 2H2 हो गए। तो कंप्लीट जहाँ पे वर्ड आ जाए कंप्लीट रिप्लेसमेंट, वो आपके नॉर्मल सॉल्ट्स आ जाएंगे। तो नॉर्मल सॉल्ट्स हैव नो आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स। अब आपको ये बहुत अच्छे से समझना है कि नॉर्मल सॉल्ट को कैसे आप पहचानेंगे। देयर विल बी नो H+ सीन, कोई भी H+ नहीं दिखाई देगा आपको उसमें, या आपको देयर विल बी नो OH नेगेटिव, OH नेगेटिव भी नहीं दिखाई देगा। जैसे कि NaCl, इसमें आपको H दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। OH दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। Na2SO4 में are you able to see H? No. Are you able to see OH negative? No. That means these are normal salts, और ये इनके reactions हैं which you have to learn. Example देख लेंगे हम, आपकी बुक में जो वो और examples दिए हुए हैं, that we will learn. फर्स्ट इज सोडियम कार्बोनेट। अब आपको एक ट्रिक और समझाती हूँ, एक चीज़ आपको और समझनी है यहाँ पे, कि जब भी आप सॉल्ट देखेंगे ना, कोई भी सॉल्ट, जब भी कोई सॉल्ट बनता है तो वो बनता है आपके रिप्लेसमेंट ऑफ H एंड OH से, ठीक है ना। वाटर भी बनता है ना साथ में, तो वाटर का इंटरचेंजिंग होती है तभी तो बनता है। तो हमने इसके साथ लिख लिया H और OH, Na+ है और कार्बोनेट नेगेटिव है, ये प्लस है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव 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 जाएगा पॉजिटिव के साथ, और ये पॉजिटिव जाएगा इस नेगेटिव के साथ। तो क्या बनेगा हमारा? हमारा बनेगा NaOH। तो हमारा बेस समझ में आ गया हमारा, और साथ में हमारा बन गया कार्बोनिक एसिड। तो बाय लुकिंग एट द सॉल्ट यू कैन आइडेंटिफाई दैट विच एसिड और विच base has been used to make that salt. For example, if I say Na2CO3, अगर मैं Na2CO3 की बात करूं, तो मैंने जब उसके साथ H और OH का रिएक्शन कराया, रिप्लेसमेंट कराया, तो मुझे समझ में आ गया कि ये जो Na2CO3 बना था ये इस रिएक्शन का प्रोडक्ट था। यहाँ पे Na के साथ कार्बोनेट आ गया और वाटर बन गया, ठीक है। तो ये सॉल्ट हमारा बना। अब इस सॉल्ट में आपको कहीं पे भी दिखाई दे रहा है H, या आपको दिखाई दे रहा है कहीं पे भी OH नहीं दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे जितने भी हाइड्रोजन थे टोटल रिप्लेस हो गए हैं हाइड्रोजन, है ना। टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन हुआ है सोडियम से। देखिए 2 सोडियम एंड 2 हाइड्रोजन, सो दैट मीन्स टोटल रिप्लेसमेंट है। तो इसलिए ये क्या बना हमारा? ये हमारा बना नॉर्मल सॉल्ट। सो दिस इज अवर नॉर्मल सॉल्ट। एक और एग्जाम्पल लेके आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट वंस अगेन so that you understand it clearly. फिर से देखेंगे इसको हम। Another example I will take of your book. It is sodium phosphate, Na3PO4। चलिए फिर से एक्टिविटी वही करते हैं हम, अपनी H वाली और OH वाली, H और OH वाली। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो चलिए बनाएंगे पॉजिटिव से, तो NaOH तो आ गया हमारा, और साथ में
H और PO4 मिलके कौन सा एसिड बनाता है? तो ये बन गया आपका फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, H3PO4, दिस इज नोन एज फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4। तो अब हमें ये पता चल गया कौन सा एसिड था, कौन सा बेस था जिसने हमारा सॉल्ट दिया है, जिसका नाम है सोडियम फॉस्फेट और प्लस वाटर। ठीक है, अब आपको इसमें बताइए कहीं पे H+ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। कहीं पे आपको इसमें OH दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। कितने सोडियम लगे हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के लिए? 3 सोडियम लगे। देखिए 3 और 3 ही थे हाइड्रोजन, यानी कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो गया। तो यानी कौन सा सॉल्ट हुआ? ये हुआ हमारा नॉर्मल सॉल्ट। तो नाउ यू कैन आइडेंटिफाई द नॉर्मल सॉल्ट बाय दिस मेथड। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अनदर एग्जाम्पल इज सोडियम एसीटेट। ओके, सोडियम एसीटेट का लेते हैं। सोडियम एसीटेट में आप जब देखेंगे तो हमारा होगा, सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला है CH3COO Na। तो आपको समझ में आ गया कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और H और OH इसका करा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा ये नेगेटिव वाला इसके साथ आ जाएगा, यानी कि हमारा एसिड क्या हो गया? CH3COOH, और हमारा बेस क्या हो गया? Na और OH को करा दीजिए, NaOH। यानी इससे हमारा बना है CH3COO Na प्लस वाटर। यानी कि यहाँ पे कंप्लीट रिप्लेसमेंट किया, एक सोडियम ने एक हाइड्रोजन का कंप्लीट रिप्लेसमेंट करने के बाद, तो दिस इज नॉर्मल सॉल्ट। ओके, दिस इज नॉर्मल सॉल्ट। So these are some examples of normal salt. Okay, the second category is acid salt, यानी acid salt। अभी तक आपको लग रहा था कि जो salt है वो न्यूट्रल होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एसिड सॉल्ट भी होते हैं हमारे। अब एसिड सॉल्ट हमारे कब बनते हैं? तो डेफिनेशन फर्स्ट वी विल गो थ्रू द डेफिनेशन दैट एसिड सॉल्ट्स आर फॉर्म बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ द आयनाइजेबल हाइड्रोजन। नॉर्मल सॉल्ट वाली डेफिनेशन, लेकिन इसमें कंप्लीट वर्ड को हटा के क्या डाल देना है? पार्शियल डाल देना है। तो हमारी क्या आ जाएगी? हमारा एसिड सॉल्ट आ जाएगा। इसमें लेकिन एक चीज़ बहुत समझने की है कि ये सिर्फ पॉलीबेसिक एसिड के साथ होगा, यानी डाईबेसिक और ट्राईबेसिक के साथ। मोनोबेसिक के साथ ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि मोनोबेसिक को आप क्या नहीं कर सकते हैं? आप उसका पार्शियल रिप्लेसमेंट तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसके पास एक ही हाइड्रोजन है, तो वो अपना एक हाइड्रोजन दे देगा तो रिप्लेस हो जाएगा। ये भी हम एग्जाम्पल में आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल्स देखते हैं, सो दैट यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर एसिड सॉल्ट। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ H2SO4। एंड अब यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ये आप सल्फ्यूरिक एसिड वाले चैप्टर में ये रिएक्शंस फिर से पढ़ेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। यहाँ पे देखेंगे आप पार्शियल रिप्लेसमेंट हो रहा है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, कैन यू सी, देयर आर 2 हाइड्रोजन आयनाइजेबल, लेकिन एक ही सोडियम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, यानी एक हाइड्रोजन ऑलरेडी सॉल्ट के साथ रह जा रहा है। ये देखिए। सो अब आपको क्या दिखाई दे रहा है इसमें? एसिड सॉल्ट में क्या दिखाई देता है? Always remember H+, H ion is seen. H+ is found in acid salt. Acid salt में आपको क्या दिखाई देगा? H+ आयन दिखाई देगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल देख लीजिए, NaHSO4, H दिखाई दे रहा है हमें, इसका मतलब ये कौन सा सॉल्ट है? ये एसिड सॉल्ट है। और किस तरह से बना? ये बना आपका H2SO4 के साथ और NaCl के साथ रिएक्ट करके। Then you have got NaHSO4 and plus HCl। ये आपको स्टडी ऑफ कंपाउंड में H2SO4 से HCl बनाने का जो मेथड है, हाउ विल यू प्रिपेयर HCl फ्रॉम H2SO4, वो ये रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन को यहाँ पे भी याद कर लीजिए, और एक बार वहाँ पे भी उसको हम रिवाइज करेंगे। एंड अनदर एग्जाम्पल, H2SO4 का रिएक्शन, वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। देखिए, ये आपका एसिड है, ये आपका बेस है, ये आपका एसिड था, ये आपका सॉल्ट था। ठीक है, तो एसिड और बेस मिलके बना रहे हैं एसिड सॉल्ट और वाटर। एसिड सॉल्ट क्यों बोला इसको हमने? क्योंकि इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है? NaHSO4, राइट। तो 1 already 2 hydrogen were there to be replaced, but only 1 hydrogen is replaced by 1 Na, and another hydrogen remains here only in the salt,
सो दिस इज एसिड सॉल्ट. एसिड सॉल्ट में आपको क्या बता दिया मैंने, आपको समझना है आपको कि इट इज H प्लस. यू कैन सी H प्लस ऑलवेज देयर. एक और एग्जाम्पल मैं देती हूँ इसी तरह का. ये जो रिएक्शन है इसी का एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको. दैट H2SO4 का आपने कॉम्बिनेशन कराया, आपने रिएक्शन कराया KOH के साथ. जो आपने KOH के साथ कराया तो यहाँ पे क्या हुआ, ये H2 और ये K मतलब एक ही रिप्लेस हुआ है. तो जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, KHSO4 प्लस वाटर. ठीक है, तो ये आपका सॉल्ट है. दिस इज सॉल्ट. लेकिन कौन सा सॉल्ट है ये, एसिड सॉल्ट है. क्यों, क्योंकि इसमें क्या दिखाई दे रहा है, H दिखाई दे रहा है. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एसिड सॉल्ट. Now we will take up the examples which are given in the book one by one, same way as we have done in the normal salt. So first is sodium hydrogen sulfide NaHSO3. तो जब आपने NaHSO3 को देखा तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे H दिखाई दे रहा है हमको. तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये आपका H जो है ये दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका मतलब ये क्या है, एसिड सॉल्ट. दिस इज acids which is given in your book, that is disodium hydrogen phosphate, that is Na2HPO4. Now we have written Na2HPO4 here. अब हम इसको वैसे ही करेंगे, हम इसमें वाटर के साथ इसका रिप्लेसमेंट कराएंगे फिर से. एंड लेट्स सी, ये OH नेगेटिव है, ये Na2 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. ठीक है, तो ये कहाँ से आया होगा, ये Na2 के साथ OH मिल के NaOH बना देगा. अब यहाँ पे जो कहानी है वो ये है कि ये तो बन रहा है हमारा H2PO4, लेकिन ओरिजिनली इट इज़ H3PO4 है ना. तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तभी आपका क्या बना है. तो इस रिएक्शन को हम यहाँ से आगे बढ़ाएंगे. ये हमने हटा दिया, ये हमारा रिएक्शन है जहाँ हमने लिया है फॉस्फोरिक एसिड और हमने बेस लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड. अभी क्या देगा, व्हेन दिस विल रिएक्ट, दिस विल गिव Na2HPO4 प्लस वाटर. ओरिजिनली हमारे कितने हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होने चाहिए थे, 3 होने चाहिए थे, लेकिन करे कितने सोडियम लगे, 2 लगे. यानी 2 सोडियम ने 2 हाइड्रोजन रिप्लेस किए और 1 हाइड्रोजन उसने ऐसे ही छोड़ दिया है. तो इसका मतलब ये कौन सा सॉल्ट है, ये एसिड सॉल्ट है, क्योंकि क्या हुआ है, हमारा पार्शियल जो है वो रिप्लेसमेंट हुआ है. तो ये भी एग्जाम्पल देख लिया आपने. नाउ अनदर एग्जाम्पल इज सोडियम, ये डी हाइड्रोजन नहीं है, डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट है. तो अगेन सेम थिंग, यही वाला जो रिएक्शन है यही चलेगा इसमें. यहाँ पे अब क्या हुआ है हमारा, यहाँ पे तो NaOH प्लस H3PO4 विल गिव यू NaH2PO4 प्लस वाटर. अब यहाँ पे अब आप देखेंगे क्या कहानी हुई है. Actually, there are 3 hydrogen which can be replaced, but how many sodium? Only 1 sodium. That means only one sodium has replaced 1 hydrogen. So how many hydrogen left? 2 hydrogen are left. तो इस तरीके से ये क्या हो रहा है, यहाँ पे पार्शियल जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. तो ये हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा एसिड सॉल्ट बन रहा है, क्योंकि इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है. सो दीज वर सम एग्जाम्पल्स जो आपकी बुक में दिए थे. तो acid salts are usually formed when the amount of base taken is insufficient for the complete neutralization. जो बेस लिया है वो आपने थोड़ा कम लिया है, इसीलिए complete neutralization नहीं हो रहा है. अदरवाइज अगर complete neutralization होगा ना तो ये इस तरीके का ये बनेगा हमारा. complete neutralization में हमारा बनेगा Na. तो अगर complete हो जाएगा तो हमारा क्या बनेगा, Na3PO4. अब ये जो Na3PO4 है ये क्या है, ये एक नॉर्मल सॉल्ट है. क्यों नॉर्मल सॉल्ट है, क्योंकि इसमें यहाँ पे कंप्लीट वर्ड यूज हो गया, कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो गया. सो दिस इज नॉर्मल सॉल्ट. और इसमें आपको क्या नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें आपको H प्लस और OH नेगेटिव नहीं दिखाई दे रहा है. तो ये आपका हो गया कंप्लीट रिप्लेसमेंट. 3 हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड बाय 3 सोडियम. सो कंप्लीट रिप्लेसमेंट. आई होप इट्स क्लियर नाउ. Now this you have to learn that acid salt when added to solution, when added to water will give hydronium ions and
देयरफॉर दे शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड, क्योंकि उनके पास हाइड्रोजन भी होता है तो वो हाइड्रोनियम आयंस बना लेंगे, H प्लस आयंस उनका वाटर के साथ मिलके हाइड्रोनियम आयन बना लेगा, तो वो बिल्कुल एसिड की तरह ही रिएक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं। तो दस दे शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। नाउ कम्स बेसिक सॉल्ट। तो जैसे आपने एसिड सॉल्ट में देखा था कि वहाँ आपको H दिखाई दे रहा था, तो जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है यहाँ आपको OH आयन दिखाई देगा सॉल्ट में, ठीक है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। बेसिक लेड क्लोराइड। लेड क्लोराइड वैसे तो क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज लेड क्लोराइड, तो ये फॉर्मूला बताएंगे आप, लेड क्लोराइड PbCl2, है ना, ये होता है आपका लेड क्लोराइड। लेकिन अगर मैं बेसिक वर्ड लगा दूं कि बेसिक लेड क्लोराइड, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि बीच में वहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे Cl आ जाएगा। ओके, सो दिस इज बेसिक लेड क्लोराइड, क्योंकि इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें आपको OH दिखाई दे रहा है। तो ऐसे सॉल्ट जिसमें आपको OH दिखाई देगा वो आपके बेसिक सॉल्ट हैं। अब बेसिक सॉल्ट की डेफिनेशन पे आ जाते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन? डेफिनेशन सेज दैट बेसिक सॉल्ट्स आर फॉर्म बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब OH का पार्शियल रिप्लेसमेंट। वहाँ आपने क्या पढ़ा था? पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन का जो है पार्शियल रिप्लेसमेंट होगा। और बाय किससे होगा? बाय अगर हम कोई डाई या ट्राई एसिडिक बेस लेते हैं और उसमें एसिड रेडिकल डालते हैं, तब जाके रिप्लेसमेंट होगा। चलिए इसके भी एग्जांपल्स हम वी विल सी दैट हाउ दे आर फॉर्म्ड। लेट्स टेक वन एग्जांपल। चलिए हम विल टेक द एग्जांपल ऑफ Cu, ये वाला ले लेते हैं। बेसिक कॉपर क्लोराइड का फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो अब आपने बेसिक कॉपर क्लोराइड का जैसे देखेंगे तो Cl आपको समझ में आ जाएगा। Cl कहाँ से आएगा, कौन से एसिड से आएगा? HCl से, ठीक है। और आपका CuOH तो है ही आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड, तो आपको मिल गया, पता चल गया किससे मिलके बने। अब इसमें आपका रिएक्शन होगा। अब यहाँ पे जो रिएक्शन होगा इसमें क्या होगा, हमारा क्या बनेगा? हमारा बनेगा CuOH Cl प्लस वाटर, पार्शियल हमारा रिप्लेसमेंट हो गया ये। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लेड वाला, जो आपका एग्जांपल दिया हुआ है सबसे पहला वाला आपका Pb वाला। ये एग्जांपल भी देख लेते हैं किस तरह से बना है। अगेन सेम थिंग, बस इसकी जगह हमें क्या लगाना होगा, तो PbOH होल ट्वाइस तो हमारा हो गया आपका बेस, और इसका रिएक्शन किससे कराएंगे? Cl आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है, यानी HCl से कराएंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा? पार्शियल हो रहा है तो Pb, बीच में खाली एक OH रिप्लेस हो गया, एक रह गया, और Cl एंड वाटर इज फॉर्म्ड। सो यू कैन सी हियर दिस इज लेड क्लोराइड बट बेसिक लेड क्लोराइड। So similarly you can see that how this thing बेसिक सॉल्ट्स आर फॉर्म। बेसिक सॉल्ट में आपको क्या नज़र आएगा? आपको OH नज़र आएगा, हर जगह देखिए OH नज़र आएगा। द बेसिक सॉल्ट कंटेन्स अ मेटालिक कैटायन, अ हाइड्रोक्सिल आयन ऑफ द बेस एंड एन एनायन ऑफ द एसिड। तो तीन पार्ट हो गए, एक तो हो गया उसका मेटालिक कैटायन, एक हो गया उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब OH आयन, और एक हो गया आपका एनायन। यानी तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है। बेसिक सॉल्ट में तीन चीज़ें होती हैं, कैटायन भी होता है, OH भी होता है, और एनायन भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक सॉल्ट। वन एसिड सॉल्ट विच इज मेड अप ऑफ इधर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। आपको एक सॉल्ट एसिड सॉल्ट का नाम बताना है जो HCl और HNO3 से बना है। यस, कैन यू? नो, there is no salt which is there is no acid salt which is made of HCl और HNO3, क्योंकि HCl और HNO3 मोनोबेसिक हैं, और एसिड सॉल्ट सिर्फ किससे बनता है? पॉलीबेसिक एसिड से बनता है। तभी तो पार्शियल रिप्लेसमेंट होगा, इनके पास तो एक ही H है, दे देंगे तो क्या हो जाएगा? पार्शियल थोड़ी होगा, टोटल होगा रिप्लेसमेंट। तो नॉर्मल सॉल्ट बनेगा HCl और HNO3 से। फिर प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट आपके सिलेबस से अभी हट गया है, अभी आपका सिर्फ ये डिकम्पोजिशन वाला पार्ट रह गया है, दैट इज एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड्स ऑन सॉल्ट। दिस इज द ओनली थिंग विच इज देयर इन द सिलेबस राइट नाउ इस ईयर के लिए। तो बस यही करेंगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको सिर्फ डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स बाय एसिड करना है, इसके सारे रिएक्शंस यू हैव टू लर्न, एंड देन decomposition of sulfides and hydrogen sulfides by acid, ये तीनों रिएक्शन लर्न करने, एंड decomposition of sulfides by acid
तो ये दोनों इसमें रिएक्शंस आपको लर्न करने हैं। तो एक बार इस रिएक्शंस को देख लेंगे हम कि क्या क्या है रिएक्शंस। ये सारे रिएक्शंस यू विल बी राइटिंग इन योर कॉपीज, दिस होल पार्ट यू विल बी राइटिंग इन योर कॉपी एंड लर्निंग इट। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ और एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड, ये सब डाइल्यूट एसिड्स हैं, ऑन सॉल्ट्स। अब हमने सॉल्ट ले लिए, ये रहे हमारे सॉल्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये हम सारे अभी हम कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स देख रहे हैं। अभी हमारा जो एक्शन चल रहा है, अब हमें जो पहला स्टेप है उसमें हमें क्या करना है, हमें डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स करवाना है डाइल्यूट एसिड से। तो देखेंगे डाइल्यूट एसिड से जैसे ही याद रखेंगे इस चीज़ को कि डाइल्यूट एसिड से जब भी कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट करते हैं तो आपको नॉर्मल सॉल्ट मिलता है। ये देखिए नॉर्मल सॉल्ट मिलता है आपको, और आपको मिलता है वाटर, और आपको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर आपको ये तीनों चीज़ याद रह जाती हैं तो पहली चीज़ आपको क्या याद करनी है कि व्हेनेवर कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट गेट कंपोज्ड बाय डाइल्यूट एसिड, इट विल गिव यू सॉल्ट, इट विल गिव यू वाटर, और क्या देगा, चूंकि कार्बोनेट है तो साथ में क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो बहुत ईजी है ये रिएक्शंस को याद करना। देखते हैं NaHCO3, ये है हमारा हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इस हाइड्रोजन कार्बोनेट को हमने क्या किया, हमने इसके साथ एक एसिड का रिएक्शन कराया, डाइल्यूट एसिड का। चलिए HCl से करा देते हैं इसको हम। तो अब हमारा क्या क्या बनेगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा सोडियम इस क्लोरीन के साथ चला जाएगा, तो हमारा बन गया NaCl, नॉर्मल सॉल्ट। फिर हमारा वाटर तो बनेगा ही बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर तो बन ही रहा है। तो हमारा ये H2O अब बचा क्या, अब हमारा बचा एक C बचा, अब तो O बचे, तो ये हमारा आ गया CO2। इस तरीके से आप अपने रिएक्शंस को लर्न कर लेंगे, ये सारे रिएक्शंस। फिर आ जाता है सल्फाइड्स और हाइड्रोजन सल्फाइड्स, दैट इज Na2SO3। सल्फाइड्स SO3 होते हैं, सल्फेट्स SO4 होते हैं, ठीक है। तो सल्फाइड SO3, तो SO3 और HSO3 यानी सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स, या इनको हम और क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड्स ही बोलते हैं। तो HSO3 इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इनका एक्शन क्या रहेगा, इनका एक्शन ये रहेगा कि इसमें चूंकि सल्फाइड्स हैं तो कौन सी गैस निकलेगी, SO2, ठीक है, SO2 गैस निकलेगी। तो जब भी आप कोई सॉल्ट लेंगे जिसमें आप सल्फाइड होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, सॉल्ट और वाटर के अलावा। बस आपको इसी तरह से याद रखना है कि सॉल्ट और वाटर और साथ में एक गैस निकल रही है। कार्बोनेट्स लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फाइड्स लेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड, और अगर हम सल्फाइड्स लेते हैं तो हमारी H2S गैस निकलती है। लेकिन यहाँ पे हमारा वाटर नहीं बनता, ये थोड़ा ध्यान रखना है। डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फाइड्स, बाकी दोनों में हमारा क्या बन रहा था, वाटर, सॉल्ट और साथ में गैस बन रही थी। लेकिन लास्ट वाले में डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फाइड्स बाय डाइल्यूट एसिड में आपका क्या बनेगा, आपका सिर्फ बनेगा सॉल्ट एंड H2S गैस। तो इट इज़ वेरी इजी टू लर्न, यू कैन लर्न ऑल द रिएक्शंस एंड राइट देम इन योर कॉपी। डिकम्पोजिशन, और इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा ये वाला पार्ट में से। Okay, so this is what we finish this chapter, and in the next term we'll be starting analytical chemistry. Thank you.